Hello dear students, welcome you all in our biology virtual class. Today is our last lecture, that is lecture number 4 on the topic biotechnology and its application, that is the chapter number 12. Today we will going to discuss the application in the formation of transgenic animals. That is the last application of rDNA technology. In rDNA technology application, we already discussed in the agricultural field, in medicinal field. Now we have to learn what are the role, what are the application in the formation of transgenic animal. So before we going to start the application in transgenic animal, we have to know what is transgenic animals. Okay. So transgenic animals whose some genes are manipulated for the benefit of human beings is called the transgenic animal. I repeat, the animals whose some genes are manipulated for the benefit of human beings is called the transgenic animal. So for example, transgenic cow, pig, goat, mice, monkey, etc. So, see, the normal animal and the transgenic animal, the difference between that, there is a difference in gene level. Okay, transgenic animal means we have to incorporate some desired gene with that organism for the human welfare. Such types of animal is called the transgenic animal. Now the question arises, what are the aim of production of transgenic animals? What are the aim of production of transgenic animal? This is very important question for CBSE. So we have to know the basic aim or basic motto behind the preparation of transgenic animals. See the first point, to understand the normal physiology and development, we have to create transgenic animals to understand the normal physiology and development. Very important point. Next one, to serve as a model for study of disease. See, there is so many different types of disease occur in human beings due to some microbes or pathogens. It may be bacteria, maybe virus, maybe fungi, or maybe others organism. So if we want to know the actual mechanism of disease due to the microbes, we have to know, we have to create the transgenic animal. We cannot simply experiment on the human body. Okay, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते वो डिजीज कैसे फैल रहा है सॉरी डिजीज का मैकेनिज्म कैसे है वो जानने के लिए हम लोग एनिमल के ऊपर फर्स्ट ट्रायल करते हैं ये देखने के लिए कि पर्टिकुलरली वो माइक्रोब्स कैसे अपना मैकेनिज्म कंप्लीट कर रहा है इन लिविंग बॉडी फॉर दैट पर्पस वी हैव टू क्रिएट द ट्रांसजेनिक एनिमल. Third one is very important, to test the vaccine safety. जो भी वायरस के अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं वो वैक्सीन फाइनली ह्यूमन बॉडी में सेफ है या उसका कुछ साइड इफेक्ट आएगा वो जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर ट्रायल. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज सम ट्रांसजेनिक एनिमल. जनरली mice are the favorite transgenic animal for that purpose. Generally, monkey are used for this purpose. पहले हम लोग monkey को यूज करते थे for the preparation or the trial of vaccine. But now transgenic mice are in use. क्योंकि mice are used to test for the polio vaccine. polio vaccine के लिए भी हम लोग mice को यूज किया था जिसके थ्रू से हम लोग बहुत ज्यादा डिजायर रिजल्ट हम लोगों को मिला था. ठीक है.
सो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट करने के लिए जो ट्रायल बेसिस में जाता है, उस ट्रायल बेसिस के लिए हम लोगों को ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो आज की डेट में कोरोना वायरस के लिए हम लोग वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत न्यूज में सुना भी होगा कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चल रहा है मतलब इनिशियल ट्रायल शुड बी मेड ऑन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सच एज माइस और मंकी। उसके बॉडी के अंदर अगर वो वैक्सीन ठीक से काम कर जाए, फिर जाके वो वैक्सीन को हम लोग ह्यूमन बॉडी में ट्रायल बेसिस में एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो ट्रायल में भी अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी जाके वो वैक्सीन ह्यूमन वेलफेयर के लिए ऑफिशियली पब्लिश्ड किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी। नाउ next important features of transgenic animal is to obtain the biological product. To obtain the biological product. Now biological product क्या होता है? Biological product are generally are the product which are developed or which are extracted from the living organism's body for the benefit of human welfare. तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग डिजायर प्रोटीन को या डिजायर कुछ प्रोडक्ट को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए डिजायर जीन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है ट्रांसजेनिक एनिमल का जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट देता है। वो एक काऊ के ऊपर फर्स्ट टाइम किया गया था, जिस काऊ का नाम रखा गया था रोजी। रोजी इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ which are able to produce larger amount of alpha lactalbumin protein. ये रोजी क्या कहता है? अल्फा लैक्टलबुमिन जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो जनरली अल्फा लैक्टलबुमिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड वेरी मच एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी को जो मिल्क दिया जाता है, जो मिल्क पीता है, उस मिल्क के अंदर अल्फा लैक्टलबुमिन होने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ द मदर्स have lack of that alpha lactalbumin protein in milk, for that purpose the couple should go for the marketed milk which have full of alpha lactalbumin। क्योंकि अल्फा लैक्टलबुमिन जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन न्यूली डेवलप्ड बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मदर्स मिल्क में ये पर्टिकुलर प्रोटीन अगर कम अमाउंट में मिल रहा है, तो ऐसा केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट मिल्क के ऊपर, रेडीमेड मिल्क के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, काऊ मिल्क के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा बेसिकली। सो जो नॉर्मल काऊ मिल्क होता है, उस काऊ मिल्क में अल्फा लैक्टलबुमिन बहुत कम अमाउंट में मिलता है, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। अब जाके ह्यूमन बॉडी से वो पर्टिकुलर अल्फा लैक्टलबुमिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को आइसोलेट करके एक काऊ के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिर देखा गया कि वो काऊ जिसको मॉडिफाइड किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया था, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया था, उस पर्टिकुलर काऊ के बॉडी में अल्फा लैक्टलबुमिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है जब वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो काऊ का नाम रखा गया था रोजी, जिसके थ्रू से हम लोग ये अल्फा लैक्टलबुमिन डिफिशियंसी को अवॉइड कर सके। तो ये हो गया टू ऑब्टेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। एंड द फिफ्थ वन इज टू टेस्ट द केमिकल और द टॉक्सिन सेफ्टी। जो भी केमिकल हम लोग यूज करते हैं एज ए ड्रग, उसका क्या टॉक्सिसिटी लेवल कितना ज्यादा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो चेक करने के लिए भी हम लोग पहले उस ड्रग को कोई ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि ये जानने के लिए उसका डिग्री ऑफ हार्मफुल कितना है वो पहले से जानने के लिए। सो दीज आर द मेन 5 इंपॉर्टेंट
aim for the production of transgenic animal. ठीक है. Now there is a new term that is the biopiracy. जनरली पायरेसी मतलब हम लोग जानते हैं ना, कुछ भी चीज को चोरी करना, है ना. पर बायोपायरेसी मतलब हो गया कुछ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट या बायोलॉजिकल सब्सटेंस को चोरी करना. अब ये कैसे होता है, एक नया टर्म है. बायोपायरेसी मतलब कैसे हो सकता है, बायोलॉजिकल चीज को चोरी करके क्या फायदा होगा, वो हम लोगों को जानना पड़ेगा. ठीक है. सो बायोपायरेसी और बायोलॉजिकल थेफ्ट मीन्स इट्स एन इलीगल कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स बाय कॉर्पोरेशन हु पेटेंट देम फॉर देयर ओन यूज. ठीक है. ये हु पेटेंट देम फॉर देयर ओन यूज. तो यहां पे देखो क्या लिखा है. बायोपायरेसी और बायोलॉजिकल थेफ्ट इट्स एन illegal collection of indigenous plants by the corporation who patent them for their own use. ठीक है. It refers to the use of bioresources or traditional knowledge by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. मतलब क्या है देखो, हम लोगों को पता है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट द डेवलप्ड कंट्री. लाइक अमेरिका आर द डेवलप्ड कंट्री, वी आर द डेवलपिंग कंट्री. तो एक चीज अच्छे से सुनो कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री मतलब सभी तरफ से वो डेवलप हो गया, चाहे वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो उसका लाइफस्टाइल हो, सब चीज से अगर कोई डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगा. बायोडाइवर्सिटी कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑब्वियसली फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. डिफॉरेस्टेशन करने के बाद ही ना वहां पे कुछ ना कुछ बिल्डिंग बन पाएगा. तो जो डेवलप्ड कंट्री होता है उसके अंदर बायो रिसोर्सेज बहुत कम होता है ड्यू टू द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट. पर जो डेवलपिंग या पुअरली डेवलप्ड कंट्री होता है उसके पास क्या होता है, इतना मल्टी स्टोर बिल्डिंग नहीं होता है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगा. अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया में मैक्सिमम क्या होता है, फार्मर. इंडिया में मैक्सिमम लैंड इज ऑक्युपाइड बाय द फॉरेस्ट. सो हियर इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट प्रेजेंट इन इंडिया इन कंपेरिजन टू द अमेरिका. ओके. सो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इंडिया में बहुत ऐसा प्लांट या एनिमल मिलेगा जिसके थ्रू से हम लोग बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन बना सकते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर पर्पस. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल मान लो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्रिएचर मिलता है जिसका यूज हो सकता है हम लोगों को पता नहीं है, पर फॉरेन कंट्री को पता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट से क्या क्या बना सकते हैं. अब वो क्या किया देखो कि से फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे डेवलपिंग कंट्री है तो पुअर पीपल बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. अगर हम लोग मान लो कि नॉर्थ ईस्ट का कोई एक बस्ती में चला गया, वहां पे जो ट्रेडिशनल थेरेपी है वो और किसी को पता नहीं, क्योंकि वो लोग मेडिसिन यूज नहीं करते, कोई भी आयुर्वेदिक प्लांट या एनिमल एक्सट्रैक्ट से वो लोग क्योर करते हैं कुछ भी डिजीज होने से. पर कोई भी प्लांट के यूज करने से अगर उसका डिजीज ठीक हो रहा है तो मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट में कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो वो डिजीज को क्योर करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं. पर उसका पीछे जो साइंस है वो उसको पता नहीं है. पर साइंस, बेसिक साइंस को पता है जो फॉरेन कंट्री का रिसर्चर है, उसको पता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या डिजीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. तो वो लोग क्या करता है, पैसा से वो प्लांट को अपने नाम में खरीद लेता है या स्मगलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है. क्योंकि ऐसा ही है, पुअर कंट्री है हम लोग, तो हम लोग को पैसा का तो जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं ना जान के वो इंपॉर्टेंट प्लांट को धीरे धीरे हम लोग ट्रेड करता है फॉरेन कंट्री को. फॉरेन कंट्री क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्लांट से या एनिमल से
कंस्ट्रक्ट बना के उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का क्या रोल है और द क्योर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज वो लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं और प्रूव करने के बाद वो लोग अपने नाम पे पेटेंट कर लेता है। अपने नाम में पेटेंट करना मतलब होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्दर अगर कोई काम करने के लिए जाएगा तो परमिशन पहले उस कंपनी या उस कंट्री का लेना पड़ेगा जो कि ना इसके ऊपर काम किया है। ये नहीं दिखा जाएगा कि वो प्लांट या एनिमल कौन सा कंट्री से वो लोग आइसोलेट किया है। ये दिखा जाएगा कि फर्स्ट टाइम उस एनिमल के ऊपर किसने काम किया, किसने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये प्लांट या एनिमल कितना इंपॉर्टेंट है, वो होता है पेटेंट राइट। ठीक है, सो इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है जबकि बायोपायरेसी या बायोलॉजिकल थेफ्ट एक सीरियस इशू बन गया था। इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। एक नया एक बिल पास किया इंडियन गवर्नमेंट के जिसके थ्रू से कोई भी कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट अपटेक the bioresources which are present in India for their experimental purpose। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तब जाकर हम लोगों को और भी अच्छे से पता चलेगा कि ये बायोपायरेसी कैसे होता है। ठीक है, सबसे एक कॉमन नाम होता है बासमती राइस। ठीक है, ये राइस जो वैरायटी होता है ओवर 1 लाख राइस वैरायटी आर ग्रोन इन इंडिया। कैन यू इमेजिन 1 lakh rice variety are grown in India। ठीक है, out of 1 lakh cultivated varieties in India, there is so many different types of variety which are produce aromatic rice। ठीक है, so within the aromatic rice, basmati rice is very common। We all use the basmati rice। Okay, so ये जो बासमती राइस हम लोग टर्म जो देख रहे हैं ना, दिस बासमती राइस इज पेटेंट टू एन अमेरिकन कंपनी। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गेट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस। कैन यू इमेजिन, बासमती राइस जो कि ना इंडिया में मिलता है, पर वही बासमती राइस का पेटेंट राइस किसके पास है? अमेरिकन कंपनी के पास है। वो कैसे हो गया? अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, इंडियन एक बासमती राइस वैरायटी को इंडिया से चोरी करके लेके गया, फिर अमेरिका में जाके अमेरिकन एक ड्वार्फ राइस वैरायटी के साथ क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो वैरायटी मिला उसका नाम बासमती राइस रखा गया। अब ये बासमती राइस का पेटेंट अमेरिका के पास है, तो मतलब क्या हो गया कि ये फर्दर बासमती राइस के ऊपर जो भी न्यू वैरायटीज आएगा उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा इसका अमेरिकन कंपनी का। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका ट्रेड करने के लिए, इसका बिजनेस करने के लिए अमेरिकन कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता है। इवन इंडिया जो कि यहाँ बासमती राइस का ओरिजिनल प्लेस है, यहाँ पे भी जो भी बासमती राइस मिल रहा है वो बासमती राइस बनाने के लिए हम लोगों को अमेरिकन कंपनी का राइट्स लेना पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन नॉट गो एनी रिसर्च वर्क ऑन बासमती राइस। दैट इज द मेन एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी, जो चोरी करके लेके गया था। वैसे ही और एक अटेम्प्ट हुआ था नीम एंड तुलसी के ऊपर। नीम और तुलसी जो कि ना बहुत एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक प्लांट है जिसके थ्रू से हम लोग बहुत कुछ डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, नीम एंड तुलसी को भी कंट्री ने अपने नाम पे ले लिया था, पर इंडियन गवर्नमेंट आर एबल टू मैनेज टू बैक द पेटेंट राइट फ्रॉम दैट कंट्री। इंडिया ने क्या किया, नीम एंड तुलसी का पेटेंट राइट उस कंट्री से अपने नाम पे ले लिया है, पर बासमती राइस को ले नहीं पाया। अभी भी बासमती राइस के ऊपर जो भी ट्रेड होता है वो अमेरिकन कंपनी का परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी। नेक्स्ट होता है बायोएथिक्स। बायोएथिक्स क्या होता है? बायोएथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज दैट अराइजेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल रिसर्चेस।
Biotechnology, especially RDN technology, is focused mainly on exploiting the living organism. Important word, exploiting the living organism. Hence, biotechnology also been referred to as unnatural and detrimental biodiversity. Unnatural and detrimental biodiversity. क्यों इसे अननेचुरल एंड डिटरमिनेंटल बायोडाइवर्सिटी बोल रहा है? क्योंकि देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग कोई भी नेचुरल जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मटेरियल के साथ हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं ताकि वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन सके। सो जब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके पीछे हम लोगों का ह्यूमन वेलफेयर कनेक्टेड है। जो भी हम लोग जैसे मान लो कोई भी हम लोग वैक्सीन बना रहा है तो वैक्सीन का ट्रायल हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं? माइस या मंकी के ऊपर कर रहे हैं। तो हर टाइम तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन फर्स्ट टाइम जो हम लोग वैक्सीन डिस्कवर किया है, जो वैक्सीन बनाया वो फर्स्ट ट्रायल में एक्सपेरिमेंटली सक्सेसफुल होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो उसके वजह से कोई माइस या मंकी का मौत हो सकता है, बार बार ऐसा होगा, होते होते फाइनली जब सक्सेसफुल होगा तो मतलब उस अटेम्प्ट में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बच गया। तो मतलब क्या है, हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं बहुत सारा एनिमल का लाइफ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि बहुत जगह में प्रैक्टिकल बेसिस में हम लोग बहुत सारा एनिमल को मारता है, उसके अंदर एनाटॉमी देखने के लिए, उसका मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर, उसका मूड ऑफ लाइफस्टाइल जानने के लिए भी हम लोग एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, सो वो भी तो एक एनिमल है, उसके अंदर भी तो लाइफ है। वो लाइफ को हम लोग थोड़ा सा एथिकल या सोशल या लीगल इशू से सोचना पड़ेगा। अगर मान लो कोई अगर ह्यूमन होगा तो ह्यूमन के ऊपर ऐसे काम हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा राइट्स हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्यों इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, कोई एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एनिमल तो कुछ हम लोगों को बोल नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग दुमादुम वो पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। ठीक है, पर वो सही नहीं होता है। उसके लिए बायोएथिक्स टर्म आया है कि हम लोग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर वी कैन नॉट गो फर्दर फॉर द एक्सप्लॉइटिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको हम लोग नहीं मार सकते। तो उसके लिए क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GEAC। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये कमेटी क्या करता है, ये कमेटी परमिशन देता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को कि वो कोई एनिमल के ऊपर अपना काम कर सके। मतलब विदाउट हैविंग द परमिशन फ्रॉम GEAC वी कैन नॉट गो सम एक्सपेरिमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग एनिमल बीइंग। कोई भी एनिमल को हम लोग हार्म नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर विदाउट द परमिशन ऑफ GEAC। मीन्स GEAC will decide the validity of genetic modification of organism and the safety of introducing genetically modified organism GMO for the public use। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आज की डेट में हम लोग अपना मन मर्जी कोई भी एनिमल के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोगों को ये पर्टिकुलर GEAC का अप्रूवल चाहिए ही होता है। विदाउट अप्रूवल ऑफ GEAC वी कैन नॉट डू आवर एक्सपेरिमेंट इन एनी लिविंग एनिमल। ठीक है, सो ये होता है बायोएथिक्स। क्योंकि बायोएथिक्स बोलता है कि हम लोग अपना फायदा के लिए कोई भी एनिमल को टॉर्चर या हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तभी जाके हम लोगों को उस पर्टिकुलर कोई एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाना चाहिए या ट्रांसजेनिक बनाता है। ठीक है, हम लोगों का खुद के इंटरेस्ट के लिए कोई भी एनिमल को ऐसे ही हार्म नहीं कर सकते। ये होता है बायो एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, दैट वाज द डिसएडवांटेजेस ऑफ GMO। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, सी द फर्स्ट पॉइंट,
समटाइम्स ट्रांसजीन मे बी सप्रेस्ड इन द ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हर केस में जो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहा है उसमें जो जीन हम लोग इनकॉर्पोरेट किया है वो जीन प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड करे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा केस में देखा गया है जो ट्रांसजीन हम लोग, जो जीन पर्टिकुलरली हम लोग कोई एक ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है वो सप्रेस्ड कंडीशन में हो रह जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुछ काम का नहीं होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो होता है, द अनडिजायर्ड फीचर्स में ऑल्सो इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द डिजायर वंस। जो डिजायर क्वालिटी के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया था वो ट्रांसजेनिक एनिमल जब प्रोडक्शन करके अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा तब कभी कभार देखा गया है जो अनडिजायर्ड फीचर्स है वो भी इनहेरिट कर जाता है डिजायर फीचर्स के साथ। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस होता है जीएमओ का। थर्ड वन होता है जेनेटिक पॉल्यूशन कैन बी डेवलप। जेनेटिक पॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि हम लोग जो इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतना ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो कैजुअली लीड्स टू सम पॉल्यूशन, जेनेटिक पॉल्यूशन, क्योंकि उसका जो खुद का जीन है वो अभी और कुछ काम का नहीं है क्योंकि वो जीन को हम लोग मैनिपुलेट कर दिया। अब वो मैनिपुलेशन के वजह से ये अपना गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दोनों ही दे सकता है। तो दिस लीड्स टू द जेनेटिक पॉल्यूशन, मतलब उसका खुद का जो जीन है वो जीन अभी और नहीं है, उसमें हम लोगों का खुद का इंटरेस्ट वाला जीन को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक जेनेटिक पॉल्यूशन बनता है कोई एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होता है बीटी कॉटन और बीटी व्हीट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द पॉलिनेटर्स। मतलब हम लोग पढ़ा था एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के अंदर कि बीटी कॉटन या बीटी व्हीट या बीटी ब्रिंजल इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बहुत सारा फ्लाइज को मरने के लिए हेल्प करता है, बीटी कॉटन या बीटी व्हीट ना। अब देखो अगर हम लोग बीटी कॉटन वैरायटी अगर हम लोग प्रोड्यूस कर लिया या बीटी व्हीट वैरायटी अगर प्रोड्यूस कर लिया तो इट कैन इजीली किल द फ्लाइज या बीटल्स। अब अगर ये सब लोग मर जाएगा तो सोचो जो पॉलिनेशन करने में जो इसका रोल था, बायोटिक पॉलिनेशन के अंदर जो आता है ना, हम लोग पढ़ा था ना प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। सो देखो वहां पे इंसेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर पॉलिनेशन। अगर इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग अगर बीटी कॉटन या बीटी व्हीट जैसा वेराइटी बना लेगा तो वी कैन इजीली डिस्ट्रॉय द पॉलिनेटर्स। ठीक है ना, तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्दर उसका पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस होता है। और लास्ट का जो डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है समटाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजीन मे बी टॉक्सिक और एलर्जिक। मतलब जो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम लोग मिला है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कभी कभार हम लोगों के लिए टॉक्सिक या एलर्जिक भी प्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि हर ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कभी कभार क्या होता है वो ट्रांसजीन जो पर्पस में हम लोग उसे ट्रांसफर किया था वो पर्पस कभी कभार सक्सेसफुल भी नहीं होता है क्योंकि ये डीएनए या जीन लेवल में हो रहा है। ठीक है ना, so sometimes the product of the transgene may be toxic or allergic for human beings. So these are the main important disadvantages of GMO, genetically modified organism. So यहाँ तक होता है हम लोगों का चैप्टर 2 that is the बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के बारे में फुल डिटेल्स स्टडी। ठीक है, so यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है मैं एक बार फिर से एक बार रिकैपिचुलेशन कर देता हूँ कि पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के अंदर 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशन होता है। एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा बीटी क्रॉप, ठीक है, और एक होता है निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल फील्ड। मेडिसिनल फील्ड्स के हम लोगों के अंदर पढ़ना पड़ेगा जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और ह्यूम्यूलिन प्रोडक्शन। फिर आएगा एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इसका रोल क्या है। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने से हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो भी हम लोग कर सकते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुका है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है बायोपायरेसी और द बायोलॉजिकल थेफ्ट। देन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बायो एथिक्स एंड फाइनली
the disadvantages of GMO. Okay, so that's it for our chapter number 12, that is the biotechnology and its application. Okay, thank you.